दिखता हूँ ना इधर बैठे तो। नहीं, हाँ ठीक है, एक मिनट बैठ के चेक करता हूँ। हाँ ठीक है ना, और ज्यादा दिख, पहले रब कर देता हूँ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। अभी ठीक दिख रहा? नहीं दिख रहा है ना फिर? हाँ ठीक। एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं, ये आपको बोर्ड के लिए अभी चाहिए ना, इसीलिए लाया है बुक, इसमें से क्वेश्चंस निकालेंगे बोल, बोर्ड के लिए, बोर्ड बोले ना, इसलिए वही प्री बोर्ड बोर्ड जो भी बोर्ड के रिलेटेड ही है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Yeah, please, all of you listen. As I told you yesterday, Prince, ले लो, क्या ना ले लो, ठीक है ना? As I told you yesterday, today I'll just give you the, you can say a revision, yes, of all the chapters. Solid solutions अभी हुआ तो उसको तो we'll just keep it aside only. We'll not worry much about that. The remaining chapters like P block, halogen compounds, and then alcohol, phenol, ethers, and biomolecules. स्टार्ट करूं मैं? हो गया सब लोग के सजेशन है ना, जितना बोलना है बोल दो, वही जितना बोलना है बोल दो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है बेटा? जी सर। हाँ, आई एम स्टार्टिंग विथ अगेन organic chapters. Now I want complete silence, complete silence, complete silence, literally complete silence. ठीक है ना? So I'm starting. Before I talk about halogen compounds, basics which is required for organic chemistry is from basic principles
of organic chemistry topic we need to study. Like what all we need to study? Because we are already done with halogen compounds, alcohol, phenol and ether. We know what all types of organic concepts we have come across in these two chapters. So we have come across electrophiles, we have come across nucleophiles, we have come across carbocations, we have come across, like, substitution reactions, elimination reactions, addition reactions, and we have come across something related to resonance and also about resonance effect. Listen very, very carefully. Okay? Resonance effect, we have studied both effects, plus R and minus R, both effects, with respect to electron donating group and with respect to electron withdrawing group. With respect to electron withdrawing group present on aromatic compound, with respect to electron donating group present on aromatic compound, and also about inductive effect, and also about nomenclature, that is IPAC system, and also about isomerism. So literally, %60 of this chapter, basic principles, we have understood while studying these two chapters, halogen compounds and alcohol, phenols and ethers. तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, आता है सबको बट करवा रहा हूँ फिर से एक बार। जितने लोगों को अच्छे से आता है, जो लोग को लगता है कि ये दिमाग खराब, बोरिंग, क्या सेम चीज, तब भी आपको सुनना पड़ेगा। नो अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ, है ना? हाँ, और सुनना अच्छे से, क्योंकि मेरे को आवाज भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? राइट। So first I'm going to start about nomenclature. When I talk about nomenclature, three things I want to specifically speak here. Remaining all you know it. 3 points I want to speak. One, what we have basically understood while naming an organic compound is identify a parent chain. And the parent chain must be longest continuous carbon chain. This is the first rule. But I'm telling you that even if we are not following this rule, in some cases where in order to give priority to the functional group, that means to include functional group in the parent chain, if we are avoiding this first rule, then it is accepted. समझ में आया मेरी बात? मतलब आप क्या कर रहे हो, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया और बाकी का लंबा चेन ही देखा तो 7 नंबर आ रहा है, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ऐसा आ रहा है, तो फिर वो गलत है। 5 कार्बन का चेन आने दो, मगर उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है
तब फिर वो करेक्ट है। मतलब लंबा जो चेन का रूल है आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है, नो इश्यूज, दैट इज करेक्ट। ये पहला पॉइंट, बाकी सब आपको मालूम है इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट, बेंजीन रिंग को एक ही कार्बन कनेक्टेड है, एक ही कार्बन, ठीक है, तब भी वो जो कार्बन कनेक्टेड है बेंजीन रिंग को, उसी को पेरेंट चेन माना जाएगा। और ये बेंजीन जो है उसको सब्स्टिट्यूएंट, और फिर उसको फिनाइल बोलेंगे, बेंजीन नहीं बोलेंगे। ये एक चीज जो आपको याद रखना है। तीसरा, whenever two functional groups are present in an organic compound, functional groups literally, not substituents, halo groups, alkoxy groups, alkyl groups, they are always treated as substituents. Halo groups मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, alkoxy OR, alkyl you know R, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ही ट्रीट करा जाएगा। मतलब हमेशा इसका नाम प्रीफिक्स में ही लिखा जाएगा स्टार्टिंग में। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब है, दो फंक्शनल ग्रुप, तब ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी के हिसाब से, ये ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी कहां से मालूम होता है? यू हैव गॉट दैट व्हाट यू कैन से, फर्स्ट चैप्टर में एक सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाइज, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर साइनाइड, ऐसा ऑर्डर में है। वो ऑर्डर रट्टा मारना पड़ता, बाहर करना पड़ता, यू नीड टू मार्क दैट ऑर्डर। पेट्रोकेमिकल सीरीज, पेट्रोकेमिकल सीरीज नहीं, समथिंग रिलेटेड टू आईपैक सिस्टम। जैसा अगर एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को पहला प्रियोरिटी, तो जिसको आप पहला प्रियोरिटी दे रहे हो उसको बोलोगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ऑटोमेटिकली जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ऑब्वियसली फिर जो सब्स्टिट्यूएंट बन गया उसको फिर से पहले ही लिखना पड़ता, और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया मतलब जो फर्स्ट प्रियोरिटी बन गया तो सफिक्स लिखना। तो फिर फार्माल्डी, ये जो आल्डिहाइड है इसका सफिक्स तो आल है, एल है या नहीं? फिर प्रीफिक्स क्या है? ऐसा आपको हर एक चीज का याद रखना पड़ता है, आल्डिहाइड का, कीटोन का, सभी का, अल्कोहल का, अमाइंस का, फिर क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं ना बेटा, एस्टर है, अमाइड है ना? फिर ईथर्स इज नॉट एसिड डेरिवेटिव, सेपरेट, ईथर्स, फिनॉल, ये सबके लिए देखना पड़ता आपको। तो क्या क्या आपको रट्टा मारने का है अभी? पहला बोलो, वो जो ऑर्डर प्रियोरिटी वाला, और दूसरा सफिक्स नेम्स एंड प्रीफिक्स नेम्स ऑफ एवरी फंक्शनल ग्रुप। देखो हेलो ग्रुप वो तो उसको सफिक्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो प्रीफिक्स ही आएगा। हेलो ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप्स और
अल्काइल एरे, हाँ वो क्या, अल्काइल ग्रुप्स, ये हमेशा प्रीफिक्स ही आएगा, सफिक्स नहीं आएगा। आल्किन का भी प्रीफिक्स नहीं आएगा, अल्काइन का भी प्रीफिक्स नहीं आएगा, वो सफिक्स ही आएगा। समझ में आ रहा है आपकी बात? अल्कोहल आएगा, कार्बाल्डिहाइड, ये क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड आएगा, वगैरह वगैरह सब आएगा, मगर वो जो अभी तक मेंशन किया वो नहीं आएगा। ये स्ट्रांग बना लो पहले अच्छे से, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक्स को कैसा स्ट्रांग करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बता रहा हूँ। ये खत्म हो गया। आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म में दो टाइप्स है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। What is isomerism? It's a phenomenon. What phenomenon? Isomers. What isomers? Same molecular formula but different properties. Those are isomers. That phenomenon we call it as isomerism. Structural isomerism. Molecular formula same but differs in the structure. Stereoisomerism. Same molecular formula but spatial arrangement. Spatial arrangement of atoms or groups is different. Structural again classified into chain, position, functional, metamerism, ring chain isomerism, and repeat करूं, पहला वाला chain isomerism, second वाला position isomerism, third वाला functional isomerism, fourth वाला metamerism, fifth वाला ring chain isomerism, and sixth वाला tautomerism. ऑनलाइन स्टूडेंट सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। हाँ, स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. Geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical मैं नहीं बताया था, मगर I told you about optical isomerism. I told you about optical isomerism when I was discussing about R and S configuration in halogen compounds chapter. Yes or no? Those compounds which are optically active, that is called as optically active compounds, and they are optical isomers. And obviously that phenomenon will be called as optical isomerism. Geometrical नहीं बताया था. Geometrical isomerism is seen in unsaturated compounds, alkenes, alkynes. डेप्थ में बताया तो और बहुत कुछ है, वो अपन अभी नहीं, अभी के लिए इतना काफी है. सुनो बेटा, सिर्फ सुनो, अच्छे से सुन लो, समझ में आ जाता. हाँ, पहला चेन आइसोमरिज्म, आपके सामने है हेप्टेन, हेप्ट एन, हेप्ट 7 कार्बन, एन मतलब पूरे कार्बन को सिंगल बॉन्ड ही चाहिए, और हेप्टेन मतलब ये आल्केन का फॉर्मूला है, आल्केन का फैमिली मेंबर है. आल्केन, आल्कीन, आल्काइन, जब भी अपन बात करते हैं तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रहता.
ध्यान से सुनो, मैं बहुत बेस से बात कर रहा हूँ, सिंपल वे में मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, व्हेन इट इज एन, व्हेन इट इज इन, व्हेन इट इज आइन, ठीक है ना। इस कॉम्पाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर और कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता, ये पहले फिक्स कर लो ब्रेन में। ये क्यों फिक्स करना है ब्रेन में? इससे फिर स्ट्रक्चर लिखना इजी हो जाता है। कैसा इजी हो जाता है? अभी मैंने आपको बताया हेप्ट एन, हेप्ट 7 कार्बन, सीधा सीधा 7 कार्बन को स्ट्रेट लिख दो, एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हुए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसा 7 कार्बन को सीधा आप लिख दो हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब जो पहला कार्बन है और जो आखिरी कार्बन है, वो दोनों को छोड़ के बाकी सब कार्बन को दो दो बॉन्ड है, आया नहीं? मैं कार्बन हूं, उधर एक कार्बन बैठा, तो ये मेरा एक बॉन्ड, ये मेरा एक बॉन्ड, उधर भी एक कार्बन बैठा, तो मैं 20 का कार्बन। सपोज मैं लास्ट कार्बन हूं, इधर कोई नहीं है, इधर एक कार्बन है, तो मेरे को एक ही बॉन्ड है इधर, समझ में आया? उसी तरह उधर एक लास्ट कार्बन है, उसको भी एक ही कार्बन, एक ही बॉन्ड है। मतलब लास्ट कार्बन्स, टर्मिनल कार्बन्स विल बी मिथाइल ग्रुप्स, CH3 ग्रुप्स, आया नहीं? बाकी जो जितने भी बीच में है वो पूरे CH2 ग्रुप्स। और कुछ देखने की सोचने की जरूरत ही नहीं। क्यों? आल्केन आल्कीन अल्काइन में कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के और कुछ है ही नहीं। और सिंगल बॉन्ड बोला क्योंकि एन है। अब ये सिंगल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर लिख दो, खत्म हो गई बात। समझ में आया? इन है तो एक डबल बॉन्ड, जब तक वो पोजीशन मेंशन नहीं किया आप डबल बॉन्ड किधर भी लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा, जब तक वो पोजीशन मेंशन नहीं किया। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो कार्बन के बीच में, जब तक वो पोजीशन मेंशन नहीं किया। सपोज वो पोजीशन मेंशन कर दिया, हेप्ट टू इन, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, हेप्ट फोर आइन, फोर्थ कार्बन के पास, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आर यू गेटिंग मी? बाकी वैलेंसी कार्बन का 4 है, तो 4 बॉन्ड हर कार्बन को हुए जैसा आप देख लेना स्ट्रक्चर में। समझ में आ रहा? और वो वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है बात? इज दैट क्लियर बेटा? अब ये 7 कार्बन का जो हेप्टेन है, जो स्ट्रेट, इसको मैं 6 कार्बन लिख दिया स्ट्रेट, हो रहा, हो रहा, हो रहा। 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, तो एक कार्बन कम हो गया ना, उसको किधर से भी डाल दो, ऊपर किधर भी डाल दो, तो उसको ब्रांचिंग बोलेंगे क्या? लिख के ये मैं करवाऊंगा, तो बोलो। वो जो आपके बाजू मैडम बैठे हैं, वो उधर से चेयर उठा के मेरे ऊपर मार देंगे, वो आपके बाजू वाले मैडम। और वो जो बाजू ये पीछे सर जो बैठा, और उनके बाजू में और एक जो सर जो बैठा, ये लोग ऐसा चेयर मेरे ऊपर फेंक देंगे, कुछ तो भी एक फेंकेंगे, बट फेंकेंगे जरूर, क्योंकि रिवीजन खत्म नहीं होगा फिर। पॉइंट इज, एडवांस के लिए अभी मैं करवाऊंगा ना, तब मैं करा दूंगा। आज अपने को 4 चैप्टर को रिवाइज करना है ना, आप टेंशन मत लो। वो है ना बहुत बल्क में है बोल के बोल रहे थे ना कल, इसीलिए बता रहा हूँ सर, थोड़ा है ना। वेरी गुड, ठीक है ना।
अस्मा जी, और एक चीज जो मैं बता रहा हूं ना, यू शुड बी इन ए पोजीशन टू इमेजिन इट, क्योंकि मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। देखो मेरे ऐसे 6 लोग सीधा बैठे, अभी तक कितने लोग बैठे थे? 7, है ना? अभी 6 ही बैठे, तो और एक किधर गया? मेरे सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर, है ना? बट मैं लास्ट वाला नहीं हूं, मैं बीच वाला हूं। अगर मैं लास्ट वाला होता ना, तो अब भी ये 7 कार्बन चाहिए नीचे स्ट्रेट। आपको ये बात भी समझ में आना चाहिए। इफ आई एम लास्ट कार्बन, टर्मिनल 1, और एक मेरे सर के ऊपर है, तो इट इज लाइक दिस स्ट्रेट कार्बन चेन, देन इट इज नॉट अ ब्रांच। बट इफ आई एम नॉट लास्ट कार्बन, इफ आई एम सेकंड कार्बन, मतलब इधर एक और कार्बन है और मेरे सर के ऊपर एक और कार्बन है, तब फिर वो ब्रांच है, देन इट्स अ ब्रांच। तो इसके पहले केस में कितने थे स्ट्रेट कार्बन? 7। अभी कितने? 6। बट हेप्टेन का फैमिली है क्या? ये हेप्टेन ही है, हेप्टेन का ही फैमिली है। कैसा? और एक कार्बन ऊपर है ना, सर के ऊपर, है ना? तो अब ये पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल को मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना? मगर पहला वाला कार्बन पूरा स्ट्रेट है और सेकंड में एक ब्रांचिंग है, तो स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। यस सर, नो? देन इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? इट कम्स अंडर chain isomerism. Why does it comes under chain isomerism? Because in the first case it is 7 carbon chain parent chain, second case 6 carbon chain parent chain, so it is differing in the chain. Are you getting my point? क्या बेटा अस्मा? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? अभी तो कुछ डाउट्स है तो क्लास के बाद किसी को भी डाउट्स है तो मेरे को पूछ लेना, नॉट एन इश्यू, आई विल वेट। ठीक है ना? हाँ, और एक चीज, व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग दिस फॉर एडवांस लेवल, आई विल स्टार्ट लिटरली फ्रॉम ABCD। पीपल में थिंक ABCD क्यों पढ़ा रहे, तो भी ABCD से ही पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा। इट इज GOD गुड और GUD गुड? हाँ, वही GOOD गुड और GUD गुड ऐसे। GUD गुड बोलते हो फिर वो टाइम पास वाली गुड है, हार्ट से नहीं आता वो, है ना? मैकेनिकल है वो, है ना? ऋषि जी, है ना? हाँ, वो क्या है, सर भी थोड़ा फास्ट है, समझ जाते। नहीं, सीरियसली, जैसा आज रिवीजन खत्म हो गया कल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर उसके लिए नहीं, नहीं नहीं मतलब कल, कल का क्लास क्या करूँ फिर? कल क्या हो गया वो आप देख लेना। तो कोई कल तो बेसिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ ना, चलता, नॉट एन इश्यू। हाँ तो सुनो भाई, ये हो गया चेन। तो इसमें और कुछ चेन पॉसिबल है क्या? है, 5 कार्बन का भी चेन हो सकता, तो 2 कार्बन ब्रांचिंग में होगा, 4 कार्बन का भी हो सकता, 3 कार्बन ब्रांचिंग में होगा। लाइक दैट यू नीड टू चेक इट आउट एंड इट नीड्स पेशेंस। कोई लॉजिक वगैरह वगैरह फॉर्मूलाज कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने लिखा वो सही है या गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? यू नीड टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको समझ में आ रहा? स्ट्रक्चर्स लिखते समय अपने को कंफ्यूजन होने का चांस रहता ना, कि आपने सेम स्ट्रक्चर को रिपीटेड भी लिखा मगर समझ में नहीं आ रहा। जब आप नाम लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नाम से फिर रिपीट होगा ना, नाम 2 बार, तो 2 बार नाम रिपीट हुआ तो आपको समझ में आया। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट नाम से आपको पता चल जाता है कि अब रिपीटेड द स्ट्रक्चर, राइट द IUPAC names. So ultimately which differs in the carbon chain length or chain isomers. ठीक बेटा? 2 methyl हेप्टेन, पूरा 7 कार्बन सीधा सीधा, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप। 3 methyl हेप्टेन, फिर से सीधा सीधा 7 कार्बन, मगर थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप।
अब इसमें क्या डिफरेंस है? पोजीशन। किसका पोजीशन का डिफरेंस है? मिथाइल का। मिथाइल किधर था? पहले केस में सेकंड कार्बन के ऊपर था, नेक्स्ट एग्जाम्पल में किधर है? थर्ड कार्बन के ऊपर है ना? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आई विल कॉल दिस एज पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलूंगा इसको? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है बेटा। C2H5OH ethanol. CH3CH2OH is ethanol. What is the molecular formula? C2H6O इसका molecular formula. ठीक है बेटा। CH3O, CH3, listen carefully. CH3O, CH3, molecular formula same, C2H6O. मगर पहले वाला इथेनॉल था, ये ईथर है. So there it is alcohol functional group, here it is ether functional group. Both are isomers, but differing in the functional group. Then such a type you call it as functional isomers. ठीक है ना बेटा? इसको क्या बोलोगे? Functional isomers. Fourth category. What is the fourth one? Metamerism. C4H10O is the molecular formula. C4H10O molecular formula. CH3CH2O CH2CH3 मतलब ऑक्सीजन को दोनों तरफ इथाइल, ईथर है ना? CH3CH2O CH2CH3 डाई इथाइल ईथर. CH3O C3H7. समझ में आया? ईथर ही है बेटा. मगर अभी ये एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है. इससे पहले एग्जाम्पल में क्या था? दोनों तरफ इथाइल था. तो ये अल्काइल का साइज डिफर हो रहा है या नहीं? सच टाइप यू कॉल इट एज मेटामर्स. मेटामर्स. क्लियर? रिंग चेन आइसोमर्स. ये क्या है? व्हाट इज दिस? Propene, I take an example. Propene. Prop is 3 carbon, 1 double bond. Alkene general formula CnH2n. है नहीं? तो 3 into 2 6. C3H6. CH3 CH double bond CH2. है ना बेटा? That is propene. ठीक है? ओपन स्ट्रक्चर. साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन इजीली आपको समझ में आना बोल तो ट्रायंगल. ट्रायंगल CH2 CH2 CH2. What is the formula? C3H6. Isomer सही है नहीं? But this is a ring. This is a cyclic compound. Ring chain isomerism. Are you getting me? Propene is open. What is the formula? C3H6. Cyclopropane is closed. Ring structure. What is the formula? C3H6. Clear? All of you. पक्का ना? आखिरी वाला टॉटोमरिज्म. टॉटोमर्स.
ये कितने लोग को मालूम है? बता दो। ऑटो का बाइट ऑटो। क्या हुआ टॉटोमर्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टॉटोमरिज्म। तो मैं बताऊं फिर मत बताओ? इनडायरेक्टली मेरे को तो नहीं बोल रहे हो ना कि सिलेबस में नहीं है मत बताओ। हाँ बता देता हूँ। ये क्या है? व्हाट इज दिस? acetaldehyde, aldehyde ना? आई एम टॉकिंग अबाउट टॉटोमरिज्म, है ना? तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? वाई? अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये बन गया CH3CO- H+, C+। करेक्ट ही लिखा ना मैडम, है ना? ऐसा लिख देता हूँ CH3, ठीक है? ये इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C H और ये O- H+। तो ये इधर अटैक करेगा तो बन गया OH। दिस इज कीटो फॉर्म, इनॉल। डबल बॉन्ड है, इन, अल्कोहल है, ओल, इनॉल, C डबल बॉन्ड O, कीटो, है ना? Even though it is a aldehyde group, I'm not worried about that part. I'm only mentioning about C double bond O here. Hence, I'm calling it as keto. Keto, enol, tautomerism. Molecular formula is same. Enol, if you see, 2 carbons, 2, 3, 4 hydrogens, 1 oxygen. If you see this one, 2 carbons, 4 hydrogen, 1 oxygen. Both are same molecular formula. This is keto form, this is enol form. Readily interconvertible from one form to another form. And this phenomenon is called as tautomerism. This one and this one are called as tautomers. C double bond O. C double bond O. C double bond O. तो कीटोइज है ना फिर। वही तो बोला मैं, आप बोलने से पहले ही बोला कि हाइड्रोजन को बाजू में रख दो। मैं सिर्फ CO को देख के ही बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या बेटा? Yes, sir. हाँ हाँ फोकस इज नॉट देयर, दैट्स द रीजन, सिंपल। क्योंकि मैं बताया एच कहां से है। मैं बताया टॉटोमरिज्म बोल के कॉन्सेप्ट है, वो डेप्थ में बताया जो बता दूंगा, अभी वैसा जरूरत नहीं है। टॉटो कहाँ से आया, ऑटो कहाँ से आया, फिर इसको चेयर क्यों बोलते हैं, इसको चेयर क्यों बोलते हैं, इसको टेबल क्यों बोलते हैं, इसको सीलिंग क्यों बोलते हैं। अपन वो
रिसर्च नहीं करेंगे केमिस्ट्री में थोड़ी चीजों के बारे में। जहां पर नेम्ड रिएक्शन है वहां पर नेम याद रखना जरूरी है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन मतलब नेम से अपने को आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या आता है ना। जैसा फॉर एग्जांपल ओजोनोलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट दोनों को अपन आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं। मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम? एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। ओजोनोलिसिस में अगर ये स्टार्टिंग मटेरियल है, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो ब्रेक कर दो। दो डबल बॉन्ड कार्बन है ना, उसको ब्रेक कर दो और ये पार्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। खत्म हो गया। थिंग इज फोकस नहीं है सीरियसली। मैं ये क्यों पढ़ा रहा था, ये क्यों पढ़ा रहा था? नहीं, ये सब्जेक्ट अभी सडन से बीच में कहाँ से आ गया? ओजोनोलिसिस क्यों आया? थोड़े चीज है जहाँ पर अपने को मैकेनिज्म से मतलब नहीं रख के भी अपन उसका आंसर फाइनल एग्जाम्स में फटाफट निकाल सकते हैं। जैसा ये वाला, ये इतना इजी रिएक्शन नहीं है ओजोनोलिसिस, आल्किन्स में आता है, वेरी टफ मैकेनिज्म। अगर आप देखोगे तो ओजोनाइड फॉर्म होगा, अनस्टेबल ओजोनाइड, देन इट विल गेट कन्वर्टेड, देन उसको फिर ऑक्सीडेशन वो सब करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा। और डायरेक्टली मैं आपको प्रोडक्ट लिख दिया, और अगर प्रोडक्ट भी दे दिए तो फाइनली आपको स्टार्टिंग मटेरियल भी लिख सकते हैं। जैसा आपको प्रोडक्ट ये दिया CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये प्रोडक्ट दे दिए। स्टार्टिंग मटेरियल पूछा, स्टार्टिंग अल्किन क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल। ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यस, खत्म, सिंपल सिंपल। जो डबल बॉन्ड O है दोनों को हटा दो, और जो कार्बन है जिसको डबल बॉन्ड है वो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, स्टार्टिंग मटेरियल आता है। बोलने का मतलब ये है कि जहां पर रिसर्च की जरूरत नहीं वहां पर मत करो। खुद को कंफ्यूज करने का, आप लोग ही ट्राई कर रहे हो खुद को कंफ्यूज करने के मेथड्स। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग मी? सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जहां जहां पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में उसको छोड़ दो, अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सिंपल ट्रिक्स, सिंपल टिप्स, उसको कैच कर लो, टाइम भी सेव हो जाता, विद इन लेस देन 1 मिनट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता और करेक्ट जेन्युइन आंसर आता, जैसा भी ये वाला। If I start teaching about ozonolysis, it will definitely take 1 hour time. Complete mechanism, steps वगैरह वगैरह ये सब लिखेंगे ना तो 45 मिनट से 1 hour लेता, पक्का लेता। आप देख लेना, मैं अल्किन्स कराते समय आपको दिखा दूंगा कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। बट एक्चुअली दिस इज द थिंग। ये क्या सिर्फ ओजोनोलिसिस में ऐसा है? सिर्फ ओजोनोलिसिस में ही अपन ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ऐसे थोड़े रिएक्शंस है जहां पर अपन स्टार्टिंग मटेरियल देके फाइनल प्रोडक्ट बता सकते विद रेस्पेक्ट टू रिएजेंट। फाइनल प्रोडक्ट आ गया तो स्टार्टिंग मटेरियल बता सकते। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं बता सकते? अल्केन्स में बता सकते हैं या नहीं? बता सकते। हाइड्रोबोरेशन, वो हाइड्रोबोरेशन में भी बता सकते हैं अल्कीन्स का। रेटिंग में
आपका जो ये एग्जाम है ना, नीट, जेडब्ल्यू जे, वो सब होने के बाद एक बार आ जाना क्लास में, सब लोग बैठेंगे। उस दिन जितना हो सके उतना मजाक करें। उस दिन बिल्कुल फोकस नहीं, उस दिन फुल सिर्फ मजाक ही करते रहेंगे एग्जाम्स के बाद। क्यों? पैसा भी जाने दो, जितना आपने पढ़ा उसके हिसाब से ही जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, टू बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू। जितना अपन एफर्ट लगाएंगे उसके हिसाब से ही एग्जाम जाएगा भाई। 2-3 क्वेश्चन उधर इधर, बस, उससे ज्यादा तो नहीं। अगर अपन 50 क्वेश्चन के हिसाब से पढ़े तो 40 क्वेश्चन तक शायद कर लेंगे। अगर अपन 20 क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो 10 क्वेश्चन लिखेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। So how the paper is going to be done by you, only you know it, nobody else will know it. 11th स्टार्टिंग में जो सीरियसनेस नहीं रहता ना, 11th के स्टार्टिंग में जो सीरियसनेस नहीं रहता ना, मुझे वो एटमॉस्फेयर नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि आप लोग, यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ योर 12th क्लास, यू आर ऑलमोस्ट, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम टू गेट इनटू प्रोफेशनल कॉलेजेस। और एक चीज ये भी बता देता हूँ, it is your time now to grasp the things at a faster rate. बेसिक जिस चीज के वीक है वो अपन कर लेंगे, बट अदरवाइज खुद को और थोड़ा फास्ट कर लो। क्यों? बिकॉज आफ्टर अ स्पैन ऑफ लेट्स से 10 months you will be sitting in the same hall like this in some other institutions, colleges in fact, to be specific, either medical college या फिर engineering college. There people are not going to speak like how I am speaking right now. फटाफट 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 काम खत्म करके निकल जाते हैं, because they are professors. They are not going to take marker and write it on the board like this and explain you everything. सीधा सामने प्रोजेक्टर, स्क्रीन के ऊपर पूरा स्लाइड मिलता, स्लाइड को फटाफट एक्सप्लेन किया, निकल गए दूसरे स्लाइड के पास। उतने टाइम में समझ लेना, लिख लेना, फिर लाइब्रेरी में जाके बुक्स निकाल के रिफर करना, फिर डाउट्स क्लियर कर लेना। दिस इज द मेथोडोलॉजी लेटर। ऑब्वियसली नो, यस और नो, है ना? 1.5 साल के बाद अपने को 80 के स्पीड पे चलाना है गाड़ी, तो अभी गाड़ी कम से कम 30 स्पीड पे चलाना स्टार्ट कर ही देना चाहिए। फिर 40 को भगाना चाहिए, फिर 50 में भगाना चाहिए, फिर 60 में, फिर 70 में, फिर 80 में, तब जाके उधर के लेवल को रीच होते, है ना? और होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए ना बेटा, जरूरी है ना। अदरवाइज फिर वहां पर कैसा कौन समझाएगा? nobody is going to come and explain you personally, not possible. Professionalism is definitely there in professional colleges. वो आदत हो जाएगा आप लोग को भी, अकॉर्डिंग टू द एज। जैसा स्कूल में 3rd क्लास में 4th क्लास में जैसा था, अभी वैसा है क्या? अकॉर्डिंग टू एज यू आर लर्निंग, तो वो भी आदत हो जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा बता रहा हूँ बस, है ना बेटा? सही है ना? अब मैं 80 स्पीड बोल के गाड़ी लेके 80 के स्पीड पे मत चलाना इधर। क्या बेटा? 80 के स्पीड पे मत चलाना। टेक केयर while ड्राइविंग। तो ये इनॉल से कीटो में बदल सकता क्या? इससे पहले का स्टेटमेंट बताओ, मैं जो बोला था, दे आर रेडीली इंटर कन्वर्टेबल। मतलब कीटो से इनॉल में, इनॉल से वापस कीटो, बदल सकता ना? ऐसा बदलेगा। अभी सिंपल है, ये फिर से इधर आ गया, है ना? तब ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये क्या हो जाएगा तब फिर?
This will become CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और ये H प्लस H, ये इधर आ गया तो कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो ये इधर चले गया, तब ये क्या बन जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड H, और ये H प्लस आके इधर अटैक किया, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा फिर स्टार्टिंग सेम बन गया ना, ठीक है ना बेटा। तो कीटो से इनॉल में, इनॉल से कीटो में, टॉटोमरिज्म। और ये कीटो इनॉल को क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स, TAUTOMERS, टॉटोमर्स। ये पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हर चैप्टर में आपको ये कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर में, नहीं ऑर्गेनिक आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर चैप्टर में आइसोमरिज्म है, आपको दे विल आस्क यू क्वेश्चन आल्सो, ठीक है ना। देन स्टीरियो आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल अभी नहीं बताऊंगा, आल्किन्स के टाइम पे, ऑप्टिकल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसके ऊपर भी टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। देन वी टॉक अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन को कनेक्टेड है, एक तरफ लेट्स से दैट क्लोरीन को कनेक्टेड है, कार्बन 3 हाइड्रोजन हियर एंड द अदर साइड इट इज क्लोरीन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो बॉन्ड किधर के तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्लोरीन की तरफ, पुल करेगा ना सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने तरफ पुल करेगा क्लोरीन, है ना। तो दिस इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज उधर मैं क्लोरीन के जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तब क्या होना चाहिए, तब अपने तरफ नहीं खींचेगा, वो उल्टा देगा, देन इट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना बेटा। Electromeric effect is seen in the case of those compounds where there is unsaturation, मतलब double bond and triple bond, and this is going to happen only in the presence of reagent. reagent है तो ही होगा, in the presence of reagent, नहीं तो नहीं होगा, so it is a temporary effect. Electromeric effect is a temporary effect. This I am speaking because we have come across Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule in halogen compounds, है ना, where to prepare haloalkane from alkenes, I take propene लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो ये है रिएजेंट, इसके प्रेजेंस में पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होगा, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, so this is electromeric effect. तो इधर क्या होगा, 2 प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Br प्लस CH3 CHBr CH3, ये होगा मेजर और ये होगा माइनर, Markovnikov. This is electromeric effect which happens only in the presence of reagent. Resonance effect, resonance effect, पहली बात, resonance is seen in the case of those compounds which undergoes conjugation. Conjugation मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, conjugation. अगर ऐसा है तो in all these cases resonance is possible.
समझ में आ रहा है आपके बात? लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट इज लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, फिर CH2 प्लस, ऐसा। तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, ACH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया रेजोनेंस। आई समझ, आर यू गेटिंग मी? There are certain rules in the case of resonance which we need to understand कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन सा है, कैसा पता चलता है, उसके लिए थोड़े रूल्स वगैरह है। अपन सब सब चीज के बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। Then what is resonance effect? What is resonance effect? This is a aromatic compound. Let's say this is your OH group, electron donating group, aromatic compound. तो यहाँ पर क्या होगा, electrons are donated here, this will donate here. So as a result, negative charge यहाँ पर, and is going to be double bond, positive charge. तो ये इधर है ना, ये इधर, ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अस्मा जी क्या हो गया, फोन कुछ अर्जेंट है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स है ना। सो दिस OH group which is present on aromatic compound, that is ortho and para directing, that is ortho and para directing. सपोज यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बजाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेता हूँ, जैसा नाइट्रो ग्रुप। लेट्स से इफ आई एम टेकिंग नाइट्रो ग्रुप, इफ आई एम टेकिंग नाइट्रो ग्रुप, देन व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये इधर शिफ्ट हो गया। Electron donating group, that is electron withdrawing group. This is releasing electrons to the benzene ring, मतलब increasing electron density of the benzene ring. So this is activating group. This is activating group OH, and where the substitution can take place at ortho position and para position. Hence it is ortho and para directing. But when I talk about this nitro group NO2, which is electron withdrawing group, it is withdrawing electrons from benzene ring, deactivating the benzene ring. So it is a deactivating group. So ortho position, para position, you can see positive charge. So substitution can take place only at meta position, not at ortho and para position, क्योंकि वहां पर already positive charge है, तो इसीलिए वो meta directing. So whenever there is electron donating group, it will act as ortho and para director.
whenever there is electron withdrawing group, it is going to act as meta director, है ना? So this is another very important concept. Plus R effect, minus R effect. हो गया, रब कर दूं? नहीं, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ सुनते समझते जाओ. बोर्ड के लिए बुक्स में जो है वो उसको पढ़ते जाओ. रिवाइज करवा रहा हूँ. ये सब 2 चैप्टर्स में है. हैलोजन कंपाउंड्स में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में ये सब कॉन्सेप्ट्स आ रहा है, इसीलिए मैं ये समझा दे रहा हूँ. आप पढ़ते समय आपको आसान होना बोल के. एक सीरियल ऑर्डर में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं मेन कॉन्सेप्ट जो आपको 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स में आते हैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ये आते हैं या नहीं आते? दे कम इन these 2 topics. Along with this we also have electrophilic substitution. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. हाँ, रब कर दो बोर्ड. Yes, sir. फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद है? इसमें कौन से बोला था? नाइट्रेशन, बेंजीन प्लस HNO3, concentrated sulfuric acid, nitrating mixture HNO3 and concentrated sulfuric acid. तब क्या आएगा? पहले HNO3 H2SO4, ठीक है ना? ये इधर आ गया तो ये बन गया भाई NO2 प्लस H2O HSO4 माइनस. ये है इलेक्ट्रोफाइल. This is electrophile which is generated. This electrophile is going to attack. ये कहां पर अटैक करता? Where it is going to attack? ठीक है, ये इधर अटैक करेगा. एज अ रिजल्ट NO2 आ गया और इधर आपको पॉजिटिव चार्ज आई नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना? तो फिर ये शिफ्ट करते जाओ तो आपको फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एंड फाइनल स्टेप में क्या होगा? इधर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता वो इधर शिफ्ट हो जाता. एज अ रिजल्ट फाइनल स्टेप में आपको नाइट्रोबेंजीन आ गया. जो HSO4 माइनस उसको डाल दिए तो उधर से H लेके वो H2SO4 निकल जाता फिर से, और ये आपको आ गया नाइट्रोबेंजीन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया. सल्फोनेशन लूंगा तो इधर NO2 की जगह पर SO3H होगा. हैलोजिनेशन लूंगा तो इधर Cl या Br होगा. अल्काइलेशन लूंगा तो इधर R होगा. असाइलेशन करूंगा तो इधर RCO होगा. समझ में आ रहा है? CO फिर R, दैट इज असाइलेशन. क्लियर? 5 रिएक्शन, सेम प्रोसीजर. What is the difference? Difference lies only in the first step. What is the first step?
generation of electrophile. In the case of nitration, it is NO2 plus, NO2 एक plus, nitro. Sulfonation, neutral electrophile, SO3. And then halogenation, Cl minus, Cl plus or Br plus, depending upon the type of halogenation. और फिर alkylation में R plus, acylation में RCO कार्बन के ऊपर प्लस. क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश का मतलब है, सेम मतलब होगा केमिस्ट्री में भी, रिएक्शन में. ठीक है बेटा? जैसा इधर एक बुक है, उधर एक डस्टर है, ये बुक उधर लगा दिया और डस्टर इधर लगा दिया, तो हो गया सब्स्टिट्यूशन. ठीक है? बुक इधर ही है, डस्टर भी इधर लगा दिया, तो हो गया एडिशन. बुक मार्कर है, मार्कर निकाल दिया, तो हो गया एलिमिनेशन. मार्कर इधर था, इधर लगा दिया, तो हो गया रीअरेंजमेंट. लिटरली सब्स्टिट्यूशन मीन्स replacement of an atom or group of atoms by another atom or group of atoms. That is substitution reaction. Addition reaction is literally you add something, and generally addition reaction matlab it will happen in alkenes and alkynes, or you can say carbonyl groups also, carbonyl compounds also, जहाँ पर double bond है. If we take alkene, for example, let's say alkene, simple one, simple, सबसे simple वाला, CH2 double bond CH2, simple वाला, इसको क्या बोलते हैं? ईथीन. इससे पहले मैं जो लिखा था that was propene, या वही ले लो ना, इससे पहले जो लिखा था propene, HBr डाले, क्या हुआ? प्रोपीन में से कुछ गया क्या? कुछ भी नहीं गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ बस. प्रोपीन में डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ, ब्रोमीन ऐड. तो वो कौन सा रिएक्शन है? एडिशन. समझ में आया बेटा? आया? तो आया क्या उधर? CH3 CH2Br, फाइनल प्रोडक्ट. तो सब्स्टिट्यूशन मालूम हो गया, एडिशन मालूम हो गया. CH3 CH2Br ले लो, स्टार्टिंग. अल्कोहलिक KOH डाल दो, Br निकल जाता, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता, तो बन जाता फिर से प्रोपेन. तो ये एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन. आर यू गेटिंग मी? normal alkane into isoalkane is what? Normal heptane into isoheptane, rearrangement होता है ना. कुछ चले गया क्या? नहीं. कुछ आया क्या बाहर से? नहीं. कुछ ऐड हुआ क्या? नहीं. जो सीधा था वो ब्रांच बन गया, तो रीअरेंजमेंट ही हुआ ना. क्लियर है बेटा? तो ये अपने केमिस्ट्री में अपन कैसा पढ़ते? मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस दो चैप्टर में अपने को जो एक्चुअली जरूरत है, दैट इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन मोर. क्यों? तीनों टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको ये दो चैप्टर में कवर हो रहे हैं. कौन से तीन सब्स्टिट्यूशंस? एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो अभी तक आपके बोर्ड में मैं लिखा था,
तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. And what are these things? Free radical, nucleophilic, nucleophiles, electrophiles, reagents. ये क्या है? फ्री रेडिकल्स कैसा जनरेट होता? होमोलाइटिक फिशन. ये मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, ये बीच में बॉन्ड है. आई एम होल्डिंग द मार्कर. राइट हैंड खींच रहा, लेफ्ट हैंड भी खींच रहा है ना. लेट्स से मेरे दोनों हाथ में सेम स्ट्रेंथ है, ये ब्रेक हो जाए सिमेट्रिकली. मतलब आधा मार्कर इस हाथ में, आधा मार्कर इस हाथ में. एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहते. जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ सिमेट्रिकली तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चले जाता, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चले जाता. मतलब एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड में आ गया. आप उसको कैसा रिप्रेजेंट करते हो? लाइक अ डॉट ऑन दैट एटम, like a dot on atom. CH3 ये dot फ्री रेडिकल. तो फ्री रेडिकल जनरेट कैसे हुआ? बाय होमोलाइटिक फिशन. व्हाट डू यू मीन बाय होमोलाइटिक फिशन? सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ बॉन्ड. unsymmetrical cleavage is heterolytic fission. ये मेरा हाथ है जो मैं मार्कर को पकड़ा, इधर तरफ मेरा दोस्त का हाथ है जो मार्कर को पकड़ा. उन्होंने खींच रहा, मैं खींच रहा, उन्होंने खींच लिया, पूरा पूरा खींच लिया. तो हेटेरोलाइटिक फिशन. तो उसके पास नेगेटिव चार्ज, मेरे पास पॉजिटिव. I am electron deficient. He is electron rich. He is electron rich. मतलब negative charge. I am electron deficient. मतलब positive charge. I want electrons because I am electron deficient. I want electrons. So I am electrophile. Why am I calling as electrophile? Because I am electron loving. I need electrons. Electrophilic, electron loving, electrophile. He is already electron rich, so he is not electron loving. He needs positive charge, so he is nucleus loving, so he is nucleophile. Are you getting me? तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, he is a nucleophile. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफाइल. But this doesn't mean that जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पूरे न्यूक्लियोफाइल ही है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पूरे इलेक्ट्रोफाइल ही है. There are neutral nucleophiles. There are neutral electrophiles. जो अभी मैं आपको बताया था सल्फोनेशन में SO3 is a neutral electrophile. Then what are neutral nucleophiles? Those which contain lone pair of electrons. Negative charge नहीं है मगर lone pair है, so it can be considered as neutral nucleophile. Is that clear? And one more point. Just because if it is Na plus, K plus, I will not consider them as electrophiles. मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलूंगा. सर अब भी आपने बोला प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल, फिर ये K प्लस है, Na प्लस है तो क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? उसके इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं है. वो लूज किया बोल के ही स्टेबल हुआ. वो क्यों छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन? टू अचीव स्टेबिलिटी. Na plus, Na is actually 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का निकाल दिया, छोड़ दिया, तब वो बन गया स्टेबल. इट हैज अचीव स्टेबिलिटी क्योंकि 10 is nothing but neon. Neon is stable gas. Are you getting my point? So just because if any ion is containing positive charge on it, just by seeing it you can't consider that as an electrophile. It depends. This is one more point. Clear?
So now substitution from substrate molecule, substrate मतलब जो starting material, is possible by free radicals also, electrophiles also, nucleophiles also. Suppose I take methane, very simple example, everybody knows it, CH4. CH4 सबको पता है, कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पूरे. I add halogen, Cl2. Condition is this happens in the presence of ultraviolet light, or this happens in the presence of sunlight. Then it will undergo halogenation. Let me tell you, just now when I was talking about electrophilic substitution, I told halogenation only. Yes or no? Now also I am talking as halogenation only. In both cases it is halogenation only, which means halogen is substituting. I know. In this case halogen is substituting hydrogen. There also halogen is substituting hydrogen. The difference is, in this case it is halogen which is acting as an electrophile. इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और जो अभी मैं CH4 plus Cl2 बोला ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, उधर हैलोजन इज गोइंग टू एक्ट एज अ फ्री रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, Cl radical. How is Cl radical generated? Then it is simple. पहली बात, in nature Cl doesn't exist, it exists as Cl2. That means there is a bond between two Cl atoms. In the presence of UV light, अब ये भी Cl, ये भी Cl, और दोनों के बीच में बॉन्ड आधा आधा ब्रेक हो, तो Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल. समझ में आया?